کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی گل فشاں تھا۔ شہزادی گل فشاں اپنی خوبصورتی، خوش اخلاقی اور عقل مندی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی اور کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر بادشاہ ان شہزادوں کی طرف سے آنے والے ہر رشتے کو نامنظور کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ شہزادے خوبصورتی یا بہادری میں کسی سے کم تھے، بادشاہ کے پاس ان رشتوں سے انکار کی صرف ایک ہی وجہ تھی۔ شہزادی گل فشاں چونکہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کی شادی کسی دور دراز کے ملک کے شہزادے سے ہو جائے اور وہ اس سے جدا ہو کر دور چلی جائے۔ بادشاہ نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی اپنے ملک کے ہی کسی اچھے سے نوجوان سے کر دے گا اور اس کا محل اپنے محل کے برابر میں بنوا دے گا تاکہ وہ دونوں اس میں رہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہایت ماہر معماروں سے محل کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھا، حکومت کے امور میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں رہتا تھا، مگر اس کی اس ضد نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ شہزادے کی شادی کسی دور دراز ملک کے شہزادے سے نہیں کرے گا۔ ملکہ اس کو لاکھ سمجھاتی کہ لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک روز ان کو اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے، مگر بادشاہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ ایک روز جب اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی تو ملکہ نے بادشاہ کو اپنی مثال دی کہ وہ 7 سمندر پار ایک ملک کی شہزادی تھی، مگر بادشاہ سے شادی کر کے اسے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا پڑ گیا تھا۔ بادشاہ اس بات پر قائل تو کیا ہوتا، مسکرا کر بولا، ملکہ اگر آپ کے ابا بھی آپ سے اتنی محبت کرتے جتنی کہ ہم شہزادی گل فشاں سے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیاہ کر اتنی دور نہیں بھیجتے۔ ملکہ نے یہ بات سنی تو منہ پھلا کر بولی، جہاں پناہ آپ کو پتہ ہے میرے ابا حضور میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، میں ایک ایک پل کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی تو بے چین ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے منہ سے ایک نامناسب بات نکل گئی ہے جس سے ملکہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اس نے کہا، پیاری ملکہ، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے مذاق ہی مذاق میں ایک غلط بات کہہ دی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام باپ اپنی بیٹیوں سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ ملکہ نے بادشاہ کی شرمندگی محسوس کر کے نرمی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہماری شہزادی ملک فارس کے شہزادے احمر کو پسند کرتی ہے، آپ کو یاد ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ہمارے ملک میں آیا تھا، دونوں حالانکہ چند روز ہی ایک ساتھ رہے تھے مگر اتنے کم عرصے میں ہی آپس میں کافی گھل مل گئے تھے۔ اس کی ماں نے شہزادی کا رشتہ بھی مانگا تھا مگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ سوچ کر جواب دیں گے، میرا تو خیال ہے کہ آپ ہاں کر ہی دیجیے، شہزادہ احمر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کی بات کا جواب تو نہیں دیا، صرف اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، ملکہ تم اس سلسلے میں جلد ہی خوشخبری سنو گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو کمرے سے نکل گیا اور ملکہ دھک سے رہ گئی کہ جانے بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا، بہت عقل مند، وفادار اور بادشاہ کا جانثار۔ وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس کا نام شہریار تھا، وہ تلوار بازی، تیر اندازی اور نیزہ بازی میں یکتا تھا۔ صورت شکل اس کی ایسی تھی کہ جو دیکھتا رہ جائے۔ شہزادی گل فشاں اور شہریار کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس کی تعلیم و تربیت اور تلوار بازی وغیرہ کی تربیت شہزادی گل فشاں کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک کنیز بھاگتی ہوئی ملکہ کے پاس آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ملکہ عالیہ، جلدی سے آئیے،
शहजादी साहिबा की तबीयत खराब हो गई है। कनीज की बात सुनकर मलका घबरा गई और दौड़कर शहजादी के कमरे में आई। उसने देखा शहजादी गुलफिशा आंखें बंद किए अपने बिस्तर में लेटी हुई है। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बेखबर सो रही है। मलका ने गसीली नजरों से कनीज की तरफ देखा और बोली, शहजादी तो सो रही है, तुम तो कह रही हो कि इसकी तबीयत खराब हो गई है। कनीज खौफ से थर थर कांपने लगी और बोली, मलका हजूर, शहजादी साहिबा अच्छी खासी मुझसे बातों में मसरूफ थी कि अचानक उन्होंने एक चीख मारी और बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने इन्हें बहुत आवाजें दी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर मलका को भी तशवीश हुई। उसने पहले तो शहजादी को हिला जुलाकर उठाने की कोशिश की, फिर जब कोई कामयाबी नहीं हुई तो उसने बादशाह को इत्तला करवाई। शहजादी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर बादशाह के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो भागा भागा आया और महल के तमाम तबीबों को तलब कर लिया। वो सब शहजादी का मुआयना करने लगे। एक तरफ वजीरजादा शहरयार भी मुंह लटकाए खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब तबीबों ने मुआयना खत्म किया तो वो खासे मायूस थे। उन्होंने बादशाह को बता दिया कि शहजादी का मर्ज इनकी समझ से बालातर है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सर पकड़कर बैठ गया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। बादशाह ने उसी वक्त मुल्क के दूसरे हकीमों और तबीबों को भी तलब कर लिया और शहजादी को दिखाया मगर बेसूद। शहजादी का मर्ज किसी की भी समझ में नहीं आया था। वो बदसतूर अपने बिस्तर पर बेसुध सोती रहती। इसी परेशानी में शाम हो गई। अगले रोज मायूस होकर बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादी को नींद से बेदार करेगा, शहजादी की शादी उससे कर दी जाएगी। इस ऐलान को सुनकर कोई भी हाजिर नहीं हुआ। सब लोग यही सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े हकीम और तबीब इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सके तो वो क्या कर लेंगे। इस सूरत हाल से बादशाह और मलका सख्त परेशान थे। उनकी मायूसी बढ़ती जा रही थी कि ऐसे में एक चौकीदार ने आकर इत्तला दी कि मुल्क फारिस का शहजादा अहमर आया है और शहजादी के इलाज के सिलसिले में बादशाह से मिलना चाहता है। नाउम्मीद बादशाह की उम्मीद अभी बाकी थी। उसने शहजादे अहमर को फौरन ही अपने कमरे में तलब कर लिया। महल के पहरेदार इसको लेकर हाजिर हो गए। बादशाह उससे पहले भी मिला हुआ था। चंद रोज पहले वो अपने माँ बाप के साथ इसके महल में आया था। शहजादा अहमद ने झुककर बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपना, मैं अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। मनादी करने वालों से सुना कि शहजादी साहिबा नींद से नहीं जाग रही। मेरा ख्याल है कि उनकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उसके गुफ्तगू करने के अंदाज और वजाहत ने बादशाह को बहुत मुतासिर किया था। उसने दिल में सोचा कि अगर इस खूबसूरत शहजादे ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया तो वो जरूर इससे इसकी शादी कर देगा। फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल किया, तुम तो एक शहजादे हो, हिकमत के कामों से तुम्हारा क्या वास्ता? शहजादे अहमद ने अदब से हाथ बांध कर कहा, जहाँ पना, शहजादी साहिबा किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, ये मसला दूसरा है। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गई। तुम्हारा मतलब है ये किसी जादूगर या देव वगैरह का चक्कर है? शहजादा अहमद ने नफी में सर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। फिर उसने हीरे जवाहरात से मरसा एक छोटी सी खूबसूरत डिबिया निकाली और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, शहजादी साहिबा को कुछ भी हुआ हो, इसका इलाज इस डिबिया में बंद है। बादशाह हैरत और दिलचस्पी से उस डिबिया को देखने लगा। अहमद की बात में जाने क्या बात थी कि मलका को भी उम्मीद हो गई कि उसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। वजीरजादा शहरयार भी वहीं था और बड़ी दिलचस्पी से शहजादे की बातें सुन रहा था और उसके होंठों पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट थी। उसके बाद बादशाह और वो सब लोग उस कमरे में आए जहां शहजादी महवे ख्वाब थी। शहजादे अहमद ने बगौर शहजादी को देखा। कुछ सोचते हुए उसने वो खूबसूरत डिबिया खोलकर उसमें से एक पर निकाला। वो पर हसीन और जमील रंगों से जगमगा रहा था। शहजादे अहमद ने इसको शहजादी के तलुओं से लगाया
जैसे ही पर ने उसके तलवों को छुआ, शहजादी को एक हल्की सी छींक आई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और हैरानी से सबको देखने लगी। बादशाह और मलका के मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। बादशाह ने जल्दी से आगे बढ़कर शहजादी को गले से लगा लिया। शहजादी घबराई हुई सी लग रही थी। अब्बा हजूर, मुझे क्या हो गया था? उसने पूछा। कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर बादशाह ने शहजादा अहमद का हाथ पकड़कर कहा, शहजादे, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे मुल्क में फैल गई थी। इस खुशी में बादशाह ने गरीबों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे। चंद रोज के बाद हस्बे वादा शहजादा अहमद और शहजादी गुलफिशा की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। रुखसती के वक्त शहजादी बादशाह के सीने से लगकर रोने लगी तो बादशाह ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा और हर लड़की को एक ना एक रोज अपने घर जाना पड़ता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी शादी अहमद जैसे खूबसूरत और ज़हीन शहजादे से हुई है। मलका शहजादी की जुदाई से रंजीदा तो थी, मगर उस बात पर खुश भी थी कि बादशाह ने शहजादी की शादी के सिलसिले में अपनी जिद छोड़ दी थी। उसने भी शहजादी को गले से लगाकर दुआएं दी। इस मौका पर सारे वजीर, मशीर और दूसरे मुलाजमीन वहां जमा थे। बादशाह ने अपनी बेटी को बेशुमार कीमती तोहफे दिए थे और 100 सिपाहियों का दस्ता उनकी हिफाजत के लिए साथ कर दिया था। सफर पर रवाना होने से पहले शहजादी ने चारों तरफ देखा जैसे किसी की तलाश कर रही हो। जल्द ही उसकी निगाह वजीरजादे शहरयार पर पड़ी। वो एक कोने में सर झुकाए उदास खड़ा था। शहजादी दौड़कर उसके करीब पहुंची और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, शहरयार भाई, अगर आप ये सब कुछ ना करते तो मेरी शादी कभी भी शहजादा अहमद से नहीं होती। आपने इतनी अच्छी तरकीब बताई थी कि अब्बा हुजूर अपनी शर्त से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए। शहरयार मुस्कुराकर बोला, मैंने बहुत सारी कहानियों में सुन रखा था कि कोई शहजादी जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाती है तो बादशाह यही ऐलान करवाता था कि जो शहजादी इसको इस मुसीबत से निजात दिलाएगा उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। मैंने ये मंसूबा बनाया था कि तुम झूठ मूठ की सोती हुई बन जाओ और शहजादा अहमद तुम्हें ठीक कर दे। उसने भी बड़ी महारत से अपना काम किया था। बादशाह सलामत को जरा भी शुबा नहीं हो सका था। अब तुमसे यही कहना है कि वहां जाकर हमें भूल नहीं जाना। इसकी बात सुनकर शहजादी ने उदासी से कहा, मैं अब्बा हजूर को, अम्मी हजूर को और शहरयार भाई आपको कैसे भूल सकती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से 2 आंसू लढ़क गए। शहजादा अहमद भी उनके करीब आकर खड़ा हो गया था। शहरयार खामोश हुआ तो उसने कहा, शहरयार, तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। तुम अगर वो तरकीब ना बताते और मेरी शादी शहजादी से ना होती तो मैं खुद सचमुच का सोता शहजादा बन गया होता। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर उसने शहरयार को गले से लगा लिया। शहरयार ने शहजादी के सर पर हाथ फेरा और फिर ये काफिला शहजादी को लेकर परदेस रवाना हो गया। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ दिया इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।